Good morning, children. Welcome to a biology class. Dear students, I hope you all are doing well, taking care of yourself as well as your family members. Beta, please avoid fast food, take healthy and nutritious diet, do physical exercise and yoga regularly. You can give 30 minutes to your body. It will improve your concentration, it will change your body, it will change your attitude. Physical exercise is very important for our health. Okay, so to concentrate in your studies, you should do physical exercise daily. So we are dealing with chapter number 6, tissues, and in our previous video we have discussed meristematic tissue. So today we are going to start with simple permanent tissue. So let's quickly revise our previous topic and start with simple permanent tissue. So we all know plant tissue is divided into two parts, meristematic tissue and permanent tissue. Now this meristematic tissue and permanent tissue, this division is made on the ability of cell division. Meristematic tissue have totipotency. Meristematic cells have totipotency. What is totipotency? Totipotency is ability of cell division. So meristematic cells, they divide continuously, while permanent cells, they do not divide. They have lost their capacity of cell division. So permanent tissue form कैसे हुए? From the meristematic tissue. Meristematic tissue is known as parent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पेरेंट टिश्यू कहा जाता है. प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं वो किससे बने होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल से बने होते हैं. कैसे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब अपनी सेल डिवीजन की एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं, दे अटेन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन, सो दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू. सो ऑल पार्ट्स इन द प्लांट आर फॉर्म्ड ऑफ परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने जब डिवाइड करना बंद कर दिया, सो दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू से ही प्लांट्स के सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं. ओके, सो परमानेंट टिश्यू they do not have totipotency, while meristematic tissue they have totipotency. What is totipotency? Ability of cell division. So meristematic cells divide करते हैं, permanent cells divide नहीं करते. Permanent cell is divided into two parts, simple permanent and complex permanent. Simple permanent tissue is made up of same type of cells. सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेम टाइप के सेल्स होते हैं. पेरेन्काइमा में एक टाइप के सेल्स होंगे, कॉलेनकाइमा में एक टाइप के सेल्स होंगे, स्क्लेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स. वाइल कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू, xylem and phloem. So xylem contains xylem vessels, tracheids. Phloem contains sieve tube companion cells. So they are made up of different type of cells, while simple tissue is made up of same type of cell. So simple permanent tissue is divided into three parts, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, so this is the different type of meristematic on the basis of location. meristematic cells plant में कहाँ कहाँ पे present है, उस location के according three type के meristematic tissue हैं. apical meristematic, apical means tip, so they are present on the stem tip और root tip. stem tip और root tip पे जो tissue present है उसको apical meristem tissue कहा जाता है. प्लांट में जिस जगह से ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलती हैं, मेन स्टेम होती है, मेन स्टेम से यहाँ से देखिए आप लोग, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, सब ब्रांचेस निकलेंगी इनमें से. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन नोड्स एंड इंटरनोड्स. इनको क्या कहते हैं हम? जहाँ से मेन स्टेम से ब्रांच और सब ब्रांचेस निकलती हैं, वी कॉल इट एज नोड्स एंड इंटरनोड्स. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन नोड्स एंड इंटरनोड्स. स्टेम और रूट्स के साइड में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, वी कॉल इट एज लेटरल मेरिस्टेम. We call it as lateral meristem. So apical meristem is responsible for increase in the length of stem and roots. So we call it as primary growth. Plant में primary growth के लिए कौन responsible है बेटा? Apical meristem. What is the meaning of primary growth? जब भी stem और root की length increase होती है, we call it as primary growth. So primary growth के लिए कौन सा meristem responsible है? Apical meristem.
नोड्स और इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी मेरिस्टम. ओके. Increase in the girth, increase in the diameter, and for secondary growth, which meristem is responsible? Lateral meristem. What is the meaning of girth, diameter और secondary growth? कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो उसकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है. धीरे धीरे आपने देखा होगा जैसे जैसे वो प्लांट ट्री बनता जाता है उसकी जो स्टेम है वो थिक होती जाती है. यहाँ से जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है. तो स्टेम और रूट की ये जो थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ये जो गर्थ इंक्रीज हो रही है, डायमीटर इंक्रीज हो रही है, ये कौन से मेरिस्टम की हेल्प से हो रही है बेटा? लेटरल मेरिस्टम की हेल्प से. ओके. एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ, इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रोथ ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड लेटरल मेरिस्टम is responsible for secondary growth. So here are some difference between meristematic and permanent tissue. We have already done this. Meristematic cells, they divide continuously, while permanent tissue cells, they do not divide. Meristematic cells have thin cell wall, permanent tissue have thick cell wall. In meristematic tissue, large size nucleus is present, prominent nuclei is there. In permanent tissue, nuclei are small. In permanent tissue, vacuoles are present, while vacuoles, the storage sac in meristematic tissue are absent. बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या करना है? डिवाइड करना. तो वहाँ पे स्टोरेज, दे डोंट नीड टू स्टोर एनीथिंग. सो वैक्यूल्स वहाँ पे एब्सेंट होते हैं. नाउ इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस? स्पेस बिटवीन सेल्स. ओके. इफ़ यू लुक एट टाइल्स इन योर हाउस, आपने अपने हाउस में टाइल्स देखी होंगी, फ्लोर के ऊपर टाइल्स होती हैं, तो उन टाइल्स में किसी भी तरीके की स्पेस नहीं होती. दे आर क्लोजली पैक्ड. द सेम वे मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर क्लोजली पैक्ड. दे डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस. Intercellular spaces are present in permanent tissue. Metabolically active. Meristematic cells are metabolically active. They divide continuously, तो ये हमेशा एक्टिव रहते हैं. Permanent tissue compared to meristematic tissue have low metabolic activities. Okay. Meristematic cells have अनडिफ्रेंशिएटेड. मेरिस्टेमेटिक के सेल्स जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड? अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब है दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन. ये सिर्फ यहाँ पे डिवाइड करते रहते हैं और बाकी सेल्स बनाते रहते हैं. वाइल परमानेंट टिश्यू सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड. डिफ्रेंशिएटेड यहाँ पे आपको समझ में आएगा. टिश्यूज यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं, they have specific function. For example, water transportation will be carried out by xylem. Xylem water transportation का काम करेगा. Phloem will transport food. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, they provide mechanical strength. तो work divide हो गया. So when a cell attain a specific structure function, they are known as differentiated. तो meristematic cells सिर्फ divide कर रहे हैं, okay? न्यू सेल्स फॉर्म कर रहे हैं. और परमानेंट टिश्यू सेल्स डिफ्रेंशिएटेड हो चुके हैं. दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स. यहाँ पे पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, स्क्लेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स. पेरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. सिंपल परमानेंट का फंक्शन है बेटा टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ओके. सो पेरेन्काइमा सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक सेल. द मीनिंग ऑफ आइसो मीन्स इक्वल. सो सेल्स आर इक्वल इन डायमीटर, इक्वल इन साइज. ओके. स्क्लेरेनकाइमा cells are long and narrow. Parenchyma cells have intercellular space. Parenchyma cells में intercellular spaces होती हैं. Collenchyma में comparatively intercellular spaces are less, and in Sclerenchyma intercellular spaces are absent. Parenchyma cell thin cell wall होती है इनमें, and their cell wall, plants में cell wall किसकी बनी होती है बेटा? cellulose की. तो Parenchyma have thin cell wall and their cell wall is made up of cellulose. Collenchyma, their cell wall is thick at corners. Corners से उनकी cell wall thick होती है. स्केलेरेनकाइमा में यूनिफॉर्मली थिक होती है. आपको डायग्राम्स में ये डिफरेंस इजीली समझ में आएंगे. ओके.
ओके, सो हेयर आर अगेन सम डिफरेंसेस. तो फिर से करते हैं इन्हें. पेरेन्काइमा थिन सेल वॉल, कॉलनकाइमा सेल वॉल थिक एट कॉर्नर्स, स्क्लेरेन्काइमा यूनिफॉर्मली थिक होती है. पेरेन्काइमा में सेल वॉल थिन थी, कम्प्लीटली थिन थी. कॉलनकाइमा में कॉर्नर्स से थिक थी और स्क्लेरेन्काइमा में कम्प्लीटली थिक वॉल्ड थी. पेरेन्काइमा cells are loosely arranged, that means they have intercellular space. cells के बीच में space है. collenchyma cells are compactly arranged with less intercellular space. cells के बीच में space जो है वो कम है and they are tightly arranged. sclerenchyma they do not have intercellular space. okay, cells के बीच में बिल्कुल भी intercellular space नहीं है. parenchyma cells living, collenchyma cells living, sclerenchyma cells dead. So this can be asked which is the dead tissue in plant. So sclerenchyma is the dead tissue in plants. Okay, out of these three simple permanent, dead कौन सा है? sclerenchyma. और living कौन सा है? parenchyma, collenchyma है. parenchyma cells की shape कैसी है? spherical हो सकती है, polygonal, oval. okay, collenchyma variable, different shapes है. स्क्लेरेन्काइमा की शेप कैसी है? एलोंगेटेड. डाउट आएगा मैम एलोंगेटेड शेप कैसी होती है? डायग्राम में आपको अभी दिखाई देगी. ओके, पेरेन्काइमा इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट, कॉलनकाइमा इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट और वेरी लेस. इन स्क्लेरेन्काइमा इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट. पेरेन्काइमा सेल्स है वैक्यूल्स. पेरेन्काइमा सेल्स में वैक्यूल्स क्यों होते हैं? बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज पैकिंग, स्टोरेज. पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन स्टोरेज है एंड वैक्यूल्स स्टोर करते हैं, तो पेरेन्काइमा में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉलनकाइमा सेल्स वैक्यूल्स आर एब्सेंट. इन स्क्लेरेन्काइमा ऑल्सो वैक्यूल्स आर एब्सेंट. ओके, तो यहाँ पे बेटा डायग्राम आ गया. मैं आपको देखो डायग्राम की बार बार बात कर रही थी. सो पेरेन्काइमा सेल्स में आपको दिख रहा होगा, सेल्स के बीच में ये देखिए स्पेस दिखाई दे रही है हमें, है ना. यू आर एबल टू सी द स्पेस. कॉलनकाइमा के सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो कॉर्नर से ये सेल्स ज़्यादा थिक है. जहाँ जहाँ पे आपको कॉर्नर्स दिखाई देंगे वहाँ पे ये ज़्यादा थिक है. ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया. ओके, स्क्लेरेन्काइमा में देखिए एक जैसी थिकनेस है, यूनिफॉर्मली थिक है. और ये एलोंगेटेड है. ये देखो ये एलोंगेटेड सेल्स हो गए ना. ओके, फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो पेरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक सेल्स, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल है. कॉलनकाइमा की सर्कुलर शेप है, ओवल शेप है. स्क्लेरेन्काइमा की जो है एलोंगेटेड शेप है, आपने देखी है. पेरेन्काइमा सेल वॉल इज थिन, थिन सेल वॉल है एंड सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. कॉलनकाइमा की सेल वॉल कॉर्नर से थिक थी. तो बेटा सेल्यूलोज के अलावा यहाँ कॉर्नर्स में क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये सेल वॉल थिक हो रही है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन. तो यहाँ पे पेक्टिन सेल्यूलोज की तरह ये केमिकल कंपाउंड है, तो सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन हो गई कॉलनकाइमा की सेल वॉल. स्क्लेरेन्काइमा हर जगह से यूनिफॉर्मली थिक थे, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिग्निन. लिग्निन एक केमिकल कंपाउंड है जो स्क्लेरेन्काइमा को हार्ड बनाता है. ओके, पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल्स है. कॉलनकाइमा भी लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है. पेरेन्काइमा में लार्ज वैक्यूल्स है, कॉलनकाइमा में जो वैक्यूल्स है वो या तो बहुत कम है या फिर नहीं है, एब्सेंट है. स्क्लेरेन्काइमा में वैक्यूल्स एब्सेंट है. इंटरसेल्युलर स्पेसेस पेरेन्काइमा में प्रेजेंट है, कॉलनकाइमा में कम होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट होती हैं. ओके, so what is the function of parenchyma? P for parenchyma, P for packing. So parenchyma packing tissue है. packing tissue का मतलब क्या होता है? प्लांट में जहाँ कहीं पे स्पेस होगी, है ना, वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा. सो पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के हर जगह हर पार्ट में पेरेन्काइमा है. पेट, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेस, स्टेम, रूट्स, लीव्स, हर जगह पेरेन्काइमा है. कॉलनकाइमा जो टिश्यू है इट इज़ प्रेजेंट इन नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स में, इंटरनोड्स में, लीव्स में प्रेजेंट है ना. हमने देखा है कॉलनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. जब भी तेज़ आंधी तूफान आता है
तो जो स्टेम है, लीव्स हैं, वो मूव होते हैं, है ना, विंड की स्पीड के साथ साथ वो मूव करते रहते हैं, वो इजीली ब्रेक नहीं हो जाते। कि जो विंड है वो कम फोर्स के साथ बह रही है तब आप देखेंगे कि वो इजीली ब्रेक नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो दिस कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है स्टेम्स, पेटियोल। पेटियोल क्या पार्ट है बेटा? लीव्स जहाँ स्टेम से अटैच होते हैं उस पार्ट को पेटियोल कहा जाता है। तो स्टेम में, लीव्स में, पेटियोल में, ओके, एपिडर्मिस के नीचे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में जो कॉलेनकाइमा है वो एब्सेंट होता है। मोनोकॉट्स कौन होते हैं बेटा? मोनोकॉट्स ग्रासेस को कहा जाता है। बैम्बू हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये मोनोकॉट प्लांट्स है। ओके, स्केलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होगा? बहुत सिंपल है, प्लांट का ऐसा पार्ट जो हार्ड है ना, वहाँ पे स्केलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। जैसे आपने कोकोनट देखा है तो कोकोनट के ऊपर जो हस्क होता है उसका ब्राउन कलर का जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, उसमें कोकोनट है। आपने उस कोकोनट में स्केलेनकाइमा है। तो हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है, वहाँ पे स्केलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है बेटा। गुआवा आप खाते हैं तो उसके जो सीड्स है और उसका जब वो ग्रीन होता है बाहर से, जब वो हार्ड होता है, स्केलेनकाइमा है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो कवर के अंदर है, जैसे आपके आलमंड्स, बादाम हो गए, वॉलनट हो गया, अखरोट हो गया, ठीक है, आपके पिस्ता हो गए, तो उनके ऊपर जो हार्ड कवरिंग आपको दिखाई देती है वहाँ पे कौन सा टिश्यू है बेटा? स्केलेनकाइमा है। ओके, सो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? जब इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो मेन फंक्शन इज स्टोरेज। ठीक है, फूड को, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, स्केलेनकाइमा डेड है तो इसका एक ही फंक्शन है यहाँ पे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो अगेन देयर आर डिफरेंस बिटवीन स्केलेनकाइमा, पेरेन्काइमा। स्केलेनकाइमा थिक सेल वॉल्स, लिग्निन डिपॉजिट है तो लिग्निफाइड। पेरेन्काइमा थिन सेल वॉल। ओके, पेरेन्काइमा सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड। पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स, स्केलेनकाइमा के डेड हैं। स्केलेनकाइमा सेल्स डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, पेरेन्काइमा cells have intercellular space. Sclerenchyma provide mechanical strength. Parenchyma store useful as well as waste material. Okay. Parenchyma cells की modification है क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, जो आप पढ़ेंगे। तो डायग्राम में देखिए ये एलोंगेटेड शेप है बेटा, और स्केलेनकाइमा देखिए हर जगह से थिक है, यूनिफॉर्मली थिक। और यहाँ पे अगर आप पेरेन्काइमा को देखेंगे तो ये यूनिफॉर्मली थिन है। Okay, now this is chlorenchyma. So chlorenchyma is the modification of parenchyma tissue. parenchyma tissue में जब chloroplast present होता है, we call it as chlorenchyma. The cells of parenchyma tissue when they contain chloroplast, they are called as chlorenchyma. इनका नाम क्या हो जाता है बेटा? chlorenchyma. So अब parenchyma में क्या present है? chloroplast, तो इसका नाम हो गया क्लोरेनकाइमा। सो क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? सेल चैप्टर में देखा था, टू हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ओके, सो क्लोरेनकाइमा किस लिए हो रहा है? फॉर टू इंक्रीज द रेट ऑफ, टू इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। सो इट इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज एरेनकाइमा। नेम ही सजेस्ट कर रहा है। देखिए आप पेरेन्काइमा में से पी हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एरेनकाइमा बन जाएगा। सो एरेनकाइमा इज द स्पॉन्जी टिश्यू इन रूट, स्टेम एंड लीव्स, और एक्वेटिक प्लांट्स में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यों प्रेजेंट है एक्वेटिक प्लांट्स में? इसलिए ताकि वो उनको बोयेंसी प्रोवाइड कर सके। व्हाट इज बोयेंसी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लोट इन लिक्विड। कोई भी चीज़ जब लिक्विड में या वाटर में फ्लोट करती है तो वो उसकी बोयेंसी होती है। ओके, सो आपने देखा होगा जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते हैं, जैसे ये लीफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो एरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट है? सेल्स के बीच में स्पेस, एयर प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे एरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड बोयेंसी। बोयेंसी इज दी प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू फ्लोट इन दी वाटर। पेड़ से कभी आपने देखा होगा लीव्स वाटर के अंदर गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है पानी पे
तो वो कभी भी अंदर सबमर्ज नहीं होता, वो सरफेस पे फ्लोट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा. So here are some difference between parenchyma, some difference between chlorenchyma and erenchyma. So chlorenchyma, erenchyma both are the modification of parenchyma tissue. दोनों parenchyma tissue की modification है. chlorenchyma photosynthesis के लिए, erenchyma buoyancy के लिए, so that aquatic plants float in the liquid. Chlorenchyma contain chloroplast, erenchyma contain large air space. Okay, chlorenchyma is present in on all the green leaves of the plant, all the mesophyll cells. plant में leaves में जितने भी mesophyll cells हैं वहाँ सब जगह chlorenchyma होगा. erenchyma aquatic stem में, leaves में, aquatic plants में. Okay, so chlorenchyma undergo photosynthesis, erenchyma provide buoyancy to the plants to help them float in the liquid. And in the next video we will discuss about xylem and phloem. Thank you class, thank you so much. Revise your topic, learn from the video. Okay, thank you class.